بی جے پی جموں کشمیر طرف 10 اضلاع خاطر نین صدورن ہند اعلان جنوبی شمالی تو وسطی کشیر مز نین نوجوانن ذمہ داری بی جے پی یو ٹی صدر ست شرما سند طرف حکم نام جاری ایل جی منوج ناتھ سند طرف جمس من سکھ کرکٹ پریمر لیگک افتتاح ملکچ ترقی مز نوجوانن ہند اہم کردار جموں کشیر ترقی ہنز وت پہ گامزن شمال و جنوبس مز خشک سالی ست نار وارداتن مز لگاتار اضاف ناگن کولن کریلن تو دریاون مز آبچ کمی مختلف جائن خصوصی دعان ہند سنز شین کم آسن کن کھیلو انڈیا گیمز متاثر 19 فروری پہ موسمس مز تبدیلی ہند امکان بڑس پیمانس پہ شین تو رودچ پیشن گوئی السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ صبح ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل شروعات بجت اہم خبر ست بی جے پی یونٹ جموں کشمیر طرف کشمیر صوبہ کن تمام 10 اضلاع خاطر نین ضلع صدرن ہند اعلان کرنے آمت ام حوالہ بی جے پی یو ٹی صدر ست شرما سند طرف باضابطہ حکم نام جاری کرنے آمت تو حکم نام مطابق سری نگر خاطر ایڈوکیٹ شیخ سلمان بی جے پی نئی ضلع صدر منتخب کرنا آمت گاندربل خاطر غلام حسن راتھر بڈگام خاطر حکیم راہ اللہ غازی پلوامہ خاطر سید شوکت غیور اندرابی شوپین خاطر وسیم راجہ پرے کلگام خاطر فاروق احمد راتھر اننت ناگ خاطر راکیش کول بارامولہ خاطر غلام حسن ڈار کپوارہ خاطر رفیق شاہ تو بنڈپور خاطر مدثر فاروق جان بی جے پی نئی ضلع صدر مقرر کرنا آمت ام حوالہ باضابطہ حکم نام بی جے پی جموں کشیر صدر ست پال شرما سند طرف جاری کرنا آمت تو نین نوجوانن تہ ذمہ داری دن آمت جمس مز آواز سکھ کرکٹ پریمر لیگ کی گۄڈنیک ایڈیشنک سنز کرنے یمک افتتاح جموں کشیر لیفٹیننٹ گورنر منوج ناتھ سند طرف کرنا آو ات موقع پہ ایل جی منوج ناتھ سند طرف ون آمت زِ ٹورنامنٹک مقصد جموں کشیر مز سکھ برادری ہند نوجوان خاطر روشن مستقبل تعمیر کرن تمو ون جموں کشیر آز ترقی ہنز وتہ پہ گامزن تو ات مز نوجوانن ہند اہم کردار تمو نوجوان کھلاڑین ہنز حوصلہ افزائی کران تمن ہدایت دژمٕژ زِ تم گژھن جموں کشیر ہند ناو پور دنیا مز روشن کریں اور دنیا کا سب سے وکست اور دھنی دیش مانے جانے والا امریکہ اس کی جی ڈی پی 1.4% کے در سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 10-11 برسوں میں دنیا کی 11ویں بڑی ارتھ ویوستھا ہم تھے، اب آج 5ویں بڑی ارتھ ویوستھا بن گئے اور 2030 تک بھارت دنیا کی تیسری بڑی ارتھ ویوستھا بنے گا۔ اس میں یہاں کھڑے نوجوانوں کا بھی یوگدان ہو، اس کے لیے ہمیں سنکلپ لینے کی آوشکتا ہے۔ آج بھارت دنیا کا سب سے یووا دیش ہے، لگ بھگ 65% آبادی ہماری 35 سال سے کم ہے اور لگ بھگ یہی استھتی جموں کشمیر کی بھی ہے۔ جموں کشمیر کی بھی 65% آبادی 35 برس سے کم کی ہے۔ پچھلے یووا ادیمیوں کی بھاگیداری کے کارن، نوجوانوں کے پریتن کے کارن مڈل کلاس کا دائرہ بھی دیش میں بڑھا ہے اور آج دیش کی آبادی کا 31% حصہ
मध्य वर्ग मिडिल क्लास के रूप में तब्दील हो गया है। अगर विश्व में टैलेंट्स या यूं मैं कहूं कि स्किल्ड मैन पावर की बात करूं तो अगले 10 वर्ष में स्किल्ड वर्कफोर्स की सप्लाई में भारत का हिस्सा मोटे तौर पर 25% होने वाला है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2030 तक भारत की वर्किंग एज वाली जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो जाएगी। अगर मैं मोबाइल फ़ोन यूजर्स की बात करूं तो सबसे बड़ा बेस आज हमारे देश में इंटरनेट से कुल जुड़ी हुई आबादी 627 मिलियन हो गई है। और अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो जितने लोग इंटरनेट से हमारे देश में जुड़े हैं वो लगभग अमेरिका की आबादी से 2 गुने ज़्यादा है, 2 गुने से भी ज़्यादा है। डिजिटल भुगतान में भारत आज विश्व में नंबर 1 पर है। दुनिया भर में सभी डिजिटल लेन देन का लगभग 46% ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रहा है। जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों की तुलना में डिजिटल लेन देन में काफ़ी आगे है। भारत पूरे विश्व में इंटरनेट डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। हर महीने प्रति व्यक्ति लगभग 20 GB डेटा भारतीय कंज्यूम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में ये प्रतिशत 22% से भी ज़्यादा। नए वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी आज सिलवर मुल्क दौर कोरमत। यह दौरान डाक बंगलो वरमुलिस मज जायज़ मीटिंग हुंद संज तह करनाव। यथ मज काबीना वजीर जावेद अहमद डार तो मेंबरान असम्बलियों अलावा इंतजामी अफसरों तह शिरकत कर। मीटिंग दौरान जिले वरमुल तमीर तरक्की हुंद जायज़ हेनाव तो अफसरन वन आमद तम गसन जिले तमीर तरक्की यकीनी बनाने सवाल संजीद सपदन युत जन आम लूकन राहत वातन यी। जन ज़राए इब्लाग के नुमाइंदन हंदन सवालन जवाब दिवान वोन तमो गैर कानूनी तौर माइनिंग हवाल सरकार तरफ सख्त कदम तुलना आमत अत मज मुलवस लूकन खिलाफ ही सख्त कार्रवाई अमल मज आन। आप लोग मीडिया हैं और आपकी जहाँ तक इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, आपकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक माइनिंग की आपने बात की, माइनिंग किसी तरीके की भी हो, चाहे वो जिप्सन की हो, चाहे वो सैंड की हो या आरबीएम की हो, किसी माइनिंग जो इलीगल माइनिंग किसी की भी होगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने जिस हिसाब से हमने यहाँ अंदर कह दिया और कमेटी बना दिया और मैंने अभी ज्वाइंट डायरेक्टर को एक जगह माइनिंग हो रही थी हमने भेज दिया और माइनिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 0% टॉलरेंस। जो करेगा आप मुझे बता दीजिए, करेगा इन राइटिंग दे दीजिए, कुछ ऐसे हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और बाकी मेरी बात, आप ट्विटर की सियासत मैं नहीं करता, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया पे सियासत नहीं करता। हकीकत यह है कि मैं खुद जानता हूँ कि ये इलीगल है और आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा, लेकिन मैं आपको अश्योर करके जाता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, एक्शन होगा। अगर मैं रावी के अंदर कठुआ में जा सकता हूँ तो ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। रात को 12 बजे जा सकता हूँ तो ये मुश्किल नहीं। तो लिहाजा जो ऑफिसर करेगा, मुझे ऑफिसरों का, अगर आप जो आज मैंने डीएमओ को कह दिया नहीं सुधरेगा तो इलाज भी किया जाएगा। मैंने कहा ना वो एक्शन लेंगे। जिस सबको आप जिस सबको भी भेजिएगा ना, मैं जिस सबको कह दिया कि इलीगल माइनिंग से कोई कम्प्रोमाइज नहीं। भैया सुनिए, जहाँ तक मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, नौशहरा सेक्टर से, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा है। ये एक बदकिस्मती है कि हम 47 से लेके आज तक बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग देखते हैं और ये बदकिस्मती, और उम्मीद यही करते हैं हम कि ये एक ऐसी बला है जो हमारे लोगों को बर्बाद करती है हर जब भी शुरू होती है। तो इस बला से हमें निजात मिलेगी और इस पे कहीं ना जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी तरफ जम्मू कश्मीर रियासती दर्जे बहाल करने सवाल जदोजहद लगातार जारी। तम हवाल आवाज प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा सद सदारत मज रामबनस मज एक तकरीब संज कर अत मज वर्करन हंद खास तादाद शिरकत कर। तारिक हमीद कर्रा सद तरफ मुतालबा कर आमुत रियासती दर्जे जम्मू कश्मीर हंद हक तो यह गि फौरी बहाल करने यून। अत मौके पे वर्किंग सदर अमन बला, सीनियर लीडर तारा चंद तो दम जिम्मेदार तकरीब मज मौजूद। हमारे लिए सरकार का यानी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। डिमोशन कर दिया गया है जिसके लिए ना उसके पास। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 2019 के फैसले के बाद रियासत जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा बाशिंदा, बाशऊर बाशिंदा नहीं रहा जिसको इस फैसले से बहुत ज़हनी तकलीफ हुई। लेकिन मरकज़ी सरकार के दबाव, डर और धौंस की जो पॉलिसी थी, अपनी आवाज़ भी वो बुलंद नहीं कर सके। वक्त गुजरता गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा,
सुप्रीम कोर्ट ने गो के हमारे हक में, अवाम के हक में फैसला नहीं दिया, हालांकि बैनुल अक़वामी सतह पे आज उस फैसले के ऊपर भी सवालिया उठा हुआ है। अलबत्ता कोर्ट का फैसला है, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म हिंद, वज़ीर दाखिला हिंद, उन लोगों ने बार बार इस बात की यकीन दहानी दी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, जम्मू कश्मीर में जब आते थे तो यहाँ पे भी तमाम उनके लीडरों ने, छोटे बड़े, कि हम जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा, स्टेटहुड जो है वो जल्द अज जल्द बहाल करने वाले। और पिछले कई सालों से, पिछले 10 साल से यही रट हम सुनते आ रहे हैं, 2019 से यही रट सुनते आ रहे हैं कि हम बहाल करने वाले। 2 लफ्ज वो हर बार इस्तेमाल करते थे, या वो कहते थे एट द अप्रोप्रिएट टाइम, या जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी वो कहता था अनुकूल वक्त। ना हमें अनुकूल वक्त पता है ये कब आने वाला है, ना हमें स्टेटहुड का कोई यार्ड स्टिक है कि ये कब कितना लंबा वक्त है। तो इसलिए हमें उनकी इस कहनी और कथनी में कोई एतबार नहीं है। वाली कशीर इंडियन मुख्तलिफ इलाकन मज पतमो कैंसो दोहों पे जंगलन मज ना लगने सब्ज सरमाइस बड़िस पैमानस पे नुकसान सबूत शुमाल जुनूबस मज महकमे जंगलात, वाइल्ड लाइफ तो मुकामी रजाकारों तरफ नार छुरानस हवाले कोशिश जारी। यलजन महकमे जंगलात के जिम्मेदारों तरफ जंगलन नजदीक रोजन वाले लुकन वन आव तम गसन सठाव एहतियात वरतन युत जन अत कौमी सरमाइस मजीद नुकसान सपदे। जिल बंडपोर के जंगलन मज ये नार लगने से बड़िस पैमानस पे नुकसान सपदन खबर मूसूल सब्ज मज जुनूबी त्राल केस नागवाड़ी, पेंगलिश, बुस, पंजू, सीर जगीर, गुलशनपोरा तो जमीन इलाकन केन जंगलन मज नार जहर सपुदमुत। युद्ध महकमे जंगलात तो मुकामी नौजवानों तरफ नार सवरान सवाल आज 2 दोहस कोशिश जारी 90% ताम नार छवरावन आमोद। अस्सलाम वालेकुम। हम बाशिंद कांडी डाडसरा से है। मेरा नाम इरफान अहमद राथुर है। शबीर अहमद शेख की निगरानी में हम यहाँ आए हैं, हमारा सारा टीम आया है। 2-3 दिनों से जो लगातार हमारे यहाँ जंगलात से आग नमूदार हुई थी, तो कल रात जो ज़बरदस्त आग हुई थी, तो हमारा जो गांव है तो हम जोश में आ गए। तो शबीर अहमद ने हमें मशवरा दिया कि कल हम इंशाल्लाह जाएंगे, और करीबन 50-60 अफराद हम आए हैं। और हमने यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, DMR के साथ, और जो वॉलंटियर्स यहाँ पर थे उनके साथ हमने काम किया है और मिल के काम किया है। 80-90% आग पे हमने काबू पा लिया है। तो अब बाकी महकमे जो वाइल्ड डिपार्टमेंट के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो महकमा है वो अब आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 5-10% जो रह गया है वो अब डिपार्टमेंट ने अपने जिम्मे लिया है और हमें इजाज़त दिया है, और हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है, जो हमसे हो सका हम टॉप तक गए हैं। जो यहाँ से देखिए, ये जो एरिया है ये हम अभी खड़ा है पिंगलिश वाइल्ड लाइफ एरिया। कल शाम से यहाँ पर आग है, काफ़ी ज़्यादा आग थी कल शाम से, लेकिन कल शाम को ही हम रात भर यहीं थे। कल शाम को इसमें 40-50% का कंट्रोल किया गया था, लेकिन सुबह हमने मज़ीद एरिया इन्फोर्समेंट किया है प्रोटेक्शन से, और ये जो है लोकल्स है, यूथ एंड वॉलंटियर्स, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। अभी आप देख रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं, अब ग्राउंड पे 95% कंट्रोल हो चुका है अभी तक। अभी कपल ऑफ आवर्स में दोबारा खैर मकदम मनशात पे रोकथाम हवाल आवाज शुमाल कशीर हंदवारा कलम आबाद इलाकस मज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर तहत एक जानकारी प्रोग्राम संज कर जिला के अफसरों तो आम लुकन खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे तहसीलदार कलम आबाद लंगेट सिंह तरफ वालदेन पे जोर दिन आमुत तम गसन पन्न बचन हूं खास ख्याल थवन युत तम अम वबा नश दूर रोजन। मुकामी लुको ये प्रोग्राम मुनद करनस पे इंतजामिया शुक्रिया अदा कर्मुत। वर्ती डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हमारा एक मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग, एनकॉर्ड मीटिंग, जो रिगार्डिंग ड्रग एडिक्शन, इसके रिहेबिलिटेशन मेजर्स टू कर्ब, इस पे हर मंथ एक मीटिंग होती है जिसमें हमारे SSP साहब भी होते हैं, DC मैम की चेयरमैनशिप में होता है, और उसकी चेयरपर्सन है DC मैम। तो उसमें और ऑफिसर्स होते हैं, CMO साहब होते हैं, एजुकेशन के होते हैं, यूथ सर्विसेज के होते हैं, ऑल तहसीलदार उसके मेंबर्स हैं। उनकी हिदायत थी कि हमें
अवेयरनेस आम पब्लिक तक पहुंचानी है कि ड्रग्स जो एक मेंस बना हुआ है पूरे हमारे यूटी में और पर्टिकुलरली हमारे कपाड़ा में भी उसका पूरा ये जाल बिछा हुआ है। इस पर आप यूथ्स को इन्वॉल्व करो, इनको एजुकेट करो ताकि ये इंफॉर्मेशन प्रोपगेट हो जाए पूरी सोसाइटी में और इस पर हम कुछ काबू पा सके। इस सिलसिले में जनवे पामपोर बठन बटदुलुत बिजनर क्यों रोजमारे लुको शिकायत बिजनर क्यों रोजमारे लुको खुशी हुंद इजहार करान मज इन इलाकन मज आवाज गोडनिक फिर जल जीवन मिशन तहत चन आब सहूलत फराम कर यमकिन मकामी लुक राहत महसूस करान तमो वोन यदि तिमन दूर दूर पे आब आनुन पेवान ताहम जल जीवन मिशन तहत आव तिमन घर घर आब फराहम कर यमकिन तिम PH डिवीजन पामपोर तो जम्मू कश्मीर हुकूमत शुक्र गुजार यह कत बावन लायक इलाकस मज 9 करोड़ रुपयन हज स्कीम तमीर करने आम यम जरिए अवामस आब फराहम करने यवान। मोहम्मद इकबाल गोजर बस्ती बजनाड़ी और हमारे साथ है बठन बरदलवा जो कि ट्राइबल बस्ती है हमारी 2 गांव की। हम इसके शुक्रगुजार हैं जो कि हमको जल जीवन मिशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो ये स्कीम चालू की है हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमको पानी की बहुत मुश्किलात थी। कई सालों से हम इस मुश्किलात से जूझ रहे थे। हमको बहुत दूर दूर से पानी कंधों पे उठा के लाना पड़ता था जिसकी वजह से हमारे बच्चे न पढ़ सकते थे न और कोई सहूलियत थी। हमको पानी की वजह से हमको बहुत मुसीबत हुई जिसकी वजह से हमको बहुत बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज हम अपने जल जीवन मिशन का बहुत एहसानमंद हैं क्योंकि इन्होंने हमको ये स्कीम के तहत जल जीवन स्कीम के तहत हमको ये पानी की स्कीम चालू की। हम इसके बहुत बहुत हम अपने अफसरों के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी ये रहनुमाई करके हमारी मुश्किलातों का इजाला किया। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमको बहुत मुश्किलात होता था, हमको दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। रियाज अहमद गुजर बस्ती बजनाड़ी से मैं आज आप बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ यूटी का जिसने ये जल शक्ति मिशन हमारे यहाँ लॉन्च की। हमको 30 साल से मुश्किलात है पानी की बहुत सारी। हम गुजर बस्ती बजनाड़ी से और मेरे पीछे ये लोग देख रहे हैं आप ये बरदुलवा बठन से इनको 30 साल से मुश्किल है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं खास करके ब्लॉक पामपुर के AW साहब से यहाँ पर है उसका भी बहुत शुक्रगुजार है। जे साहब यहाँ पर आए उनका भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने 30 साल से हमें यहाँ पानी की बहुत मुश्किलात थी ये हमारी मुश्किलात दूर की। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। खास करके जो हमारे यहाँ बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे उन पर की सेहत पर भी बहुत असर पड़ रहा था। मशहूर टीवी सीरियल एक्ट्रेस आकांक्षा जुनेजा श्रीनगरस अंदर एल्बम शूट करान। आकांक्षा जुनेजान बड़े अच्छे लगते हैं हमारी बेटी राज करेगी सीरियल मज कम करमज तमो गुलिस्तान न्यूज़ सहित कत करान वोनमुत तम हंदिस सयाहतस पोचर दिन यसान। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल सहित तमो खास कत बात करमज। बॉलीवुड का कनेक्शन वादी कश्मीर में कई दहाइयों से है और साथ ही साथ वादी कश्मीर में भी जी हाँ आजकल एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है जब कलाकार वादी कश्मीर की ओर रुख करते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे साथ यहाँ पर अदाकारा जी हाँ एक फैंटास्टिक एक्ट्रेस है जो पिछले 16 सालों से इंडस्ट्री के साथ जुड़ी है काम कर रही है। इनका नाम सबसे पहले इनके ही मुंह से जाना चाहूँ। आकांक्षा जुनेजा। आकांक्षा जुनेजा जी जो कश्मीर आई हैं कश्मीर के खूबसूरत सफर पे है। आइए इनसे खूबसूरत सी गुफ्तगू करते हैं। आकांक्षा सबसे पहले वेलकम टू कश्मीर। थैंक यू सो मच। आकांक्षा जानना चाहूंगा कई सारे असाइनमेंट्स इंडस्ट्री में इतना लॉन्ग टाइम का सफर कई सारे सीरियल शोज एंड ऑल अब क्या स्पेशल कश्मीर में क्या कुछ स्पेशल आप पेरेंट्स देने जा रहे हैं इस खूबसूरत माहौल को लेकर? कश्मीर मेरे दिल के हमेशा ही बहुत करीब रहा है और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं यहाँ आकर काम करूँ, यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करूँ, यहाँ के लोगों को सिखाऊं कि कैसे इंडस्ट्री में काम किया जाता है, यहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। तो काफ़ी टाइम से ये मेरे माइंड में था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो अब जब मुझे जैसे ही टाइम मिला मैंने यहाँ पे एक वीडियो एल्बम शूट करने के लिए आई हूँ, मेरी हसरतें, जो आदिल और जॉर्डन के साथ हैं। तो वो हमने कंप्लीट किया है, वीडियो एल्बम जल्दी बाहर आएगा। इसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ पे वर्कशॉप्स रखें
यहाँ के लोकल्स के लिए, उन्हें भी सिखाए कैसे क्या काम किया जाता है इंडस्ट्री में, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस तरीके से काम होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर टूरिज्म और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने साथ हमेशा जोड़े रखूँ। बहुत खूबसूरत मिसाल और खूबसूरत यादें दोबारा से दोहराइए ना, कहाँ कहाँ अपनी प्रेजेंस दी है, कुछ लोगों को बताइए ना अपनी अपीयरेंस क्या, थोड़ा याद आ जाए कि कहाँ जुनैजा जी ने काम किया है। मैंने शुरुआत की थी 2008 में स्टार प्लस के रियलिटी शो महायात्रा के थ्रू, जहाँ मैं अपने पेरेंट्स को 4 धाम की यात्रा पर लेके गई थी, और उसके बाद फिर बैक टू बैक डेली सोप्स करती रही। इंडस्ट्री के जितने भी बड़े शोज हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, कुंडली भाग्य, साथ निभाना साथिया, प्रतिज्ञा, दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती भव, ये दिल सुन रहा है, इतने सारे हैं, मुझे तो खुद भी हमने याद इसीलिए नहीं है। सोचा कि अपने व्यूवर्स अपने नाज़रीन को याद दिला दे, आखिरकार ये खूबसूरत चेहरा आजकल कश्मीर में घूम रहा है, भाई क्या कुछ हो रहा है। अच्छा ये भी जानना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में जैसे आपने कहा कि अभी प्रोजेक्ट्स है, एल्बम्स वगैरह कर रही, हाउ पर्सनली यू बिलीव दैट वी हैव अ फैंटास्टिक टैलेंट ऑल अराउंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली अपीयरेंस विद एक्टर्स, सिंगर जो कश्मीर से हैं, जिनके साथ आप मिल रही हैं, घुल मिल रही है, क्या लग रहा है आपको? मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत 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 सारा टैलेंट है जो अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, लोगों को पता नहीं है। बहुत खूबसूरत सिंगर्स हैं, इवन डायरेक्टर्स, डीओपीज, हर डिपार्टमेंट में, ड्रेस डिपार्टमेंट। यहाँ की कला बहुत अलग है, जो हम रेगुलर हमारे बॉलीवुड में देखते हैं, यहाँ लोग उससे अलग सोचते हैं, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। इसलिए मैंने सोचा है कि अब क्यों ना कश्मीर को आगे लिया जाए और कश्मीर के साथ काम किया जाए। कश्मीर के एहसास और कश्मीर के मिठास। तो नाज़रीन, कोशिश खबर नाम होती है, खुश रोजू, खुशहाल रोजू, फी अमान अल्लाह।